मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब कुछ। चलो, माई सेल्फ डॉक्टर अनुराधा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 9th का फर्स्ट चैप्टर सेल। बेटा, हमने आपके तक्षशिला इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक क्वेश्चनियर तैयार किया जिसमें हर हफ्ते हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ना सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स में आ सकते हैं, इनफैक्ट आपके जो स्कॉलरशिप टेस्ट आता है 9th में, दैट इज MVPP, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस MVPP में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, बायोलॉजी में आपके स्कूल के एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हर वीक आपको इसी तरह से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। So today I am going to start with your first chapter of your 9th class, that is cell. So let's discuss our first question. The scientific study of cell is called. Do you know, students, what is the study of cell is called? The study of the cell is known as cytology. ठीक है? So what is the study of cell is known as cytology. Yeah, cytology. And सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? हमने बहुत पढ़ा है अपनी बुक्स में दैट द सेल वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। तो हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो साइटोलॉजी के फादर कौन हुए? वो ही जिन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, दैट इज योर रॉबर्ट हुक। Robert Hooke in the year 1665 discovered your dead cell. Where? In your cork. So Robert Hooke is considered as the father of cytology. Now the next question is, the cell wall of the plant cell is made up of. हम सबको पता है that plant cell they need more support. So for that support they have an additional covering. हमारे सब प्लांट सेल के पास एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? We know it as cell wall. And this cell wall in the plant cell is known, it is made up of your cellulose. But do you know this thing कि bacterial cell wall किससे बनी होती है? This is very important point. Please all of you mark it. The bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Whereas your fungal cell wall is made up of chitin. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है आपका कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज. Likewise, the plant cell wall is made up of your cellulose. The bacterial cell wall is made up of your peptidoglycan, and the fungal wall is made up of your chitin. So please remember these important questions. You can take a screenshot also of these questions. Now the next term, who coined the term cell? So obviously the cell was discovered by Robert Hooke. So he gave the term cell. Now next one, which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो हम वन बाय वन चलते हैं. साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म. हमें पता है इन योर सेल you have your cytoplasm. The matrix inside the cell is known as cytoplasm, but the matrix inside this is your nucleus. So matrix inside your nucleus is known as nucleoplasm, and both of them together make your protoplasm, the living part of the cell. So अब हम बता सकते हैं कि क्या सेल साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं? नहीं. So this is a incorrect statement. Rest बाकी की स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ लेते हैं. Lysosomes are known as suicidal bags. Yes. Mitochondria has its own DNA. Yes, that is why mitochondria is known as semi-autonomous body. All of the above are incorrect. तो ये भी ऑप्शन गलत है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था? That cytoplasm is also known as protoplasm. Now the next, the barrier between protoplasm and outer environment in animal cells. तो ये हमारा सेल है. हमारे सेल के बाहर क्या है? एनिमल सेल के बाहर
एनिमल सेल के बाहर भी यू हैव इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, द फ्लूइड्स इन बिटवीन द सेल इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो सेल और इस आउटर एनवायरनमेंट के बीच में जो ये बैरियर है, इस बैरियर को हम क्या कहते हैं? दिस बैरियर इज नोन एज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन ऑफ योर न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? मैट्रिक्स है, जेल है, लाइक लिक्विड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो बैरियर का काम कौन कर रहा है? बैरियर क्या होता है? जो बीच में मेम्ब्रेन होती है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो यहाँ बैरियर का काम कौन कर रहा है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। देखो हमारी बॉडी में वी हैव मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हर सेल का एक पर्टिकुलर शेप होता है, साइज होता है। तो अगर हम बात करें कि हमारी इस ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ का सेल होता है? आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होता है इट इज अराउंड 90 to 100 सेंटीमीटर। आप कह सकते हो कि 1 मीटर के अराउंड इसका साइज होता है। सो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपको पता है हमारा जो एनिमल किंगडम है उसका सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? डू यू नो दैट? इट इज माइकोप्लाज्मा एंड द लार्जेस्ट सेल इज योर एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्लियर? सो नेक्स्ट वन, द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अभी हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दैट न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके क्या बना रहे हैं? हमारा प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। ये क्या है? हमारा लिविंग पार्ट है सेल का। देखो हमारी सेल में ना दो, हर पार्ट लिविंग नहीं होता और हर पार्ट डेड नहीं होता। लाइक सेल वॉल इज अ डेड पार्ट बट सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट। अदरवाइज लाइकवाइज द प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले ये जो टर्म थी किसने दी थी आपकी? बताइए। यस, परकिंजे। सो परकिंजे वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म प्रोटोप्लाज्म दी थी हमें। नाउ द नेक्स्ट, which of the following is known as brain of the cell? Very easy, like हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? अब मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं, आई एम स्पीकिंग, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। अब सेल है, सेल के अंदर बच्चों बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो सेल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है? उसका न्यूक्लियस। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो हु इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? योर न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस? देखो न्यूक्लियस के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो 4 मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड योर न्यूक्लियर एनवेलप। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है क्या है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। लाइकवाइज ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हमारा, इन बिटवीन यू हैव गैप्स जिनको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम बोलते हैं हमारे न्यूक्लियर पोर्स। तो जो 4 मेन कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के, तो क्या है? यू हैव योर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन यू हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो पड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। यही क्रोमैटिन फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या करते हैं? शॉर्टन हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और क्या बना रहे हैं? तुम्हारे क्रोमोसोम्स बनाते हैं। देन you have your the matrix inside the nucleus, that is known as your nucleoplasm, and the covering, the double membranous covering, it is your nuclear envelope. Clear? The next, the nucleus is separated from the surrounding cytoplasm by the nuclear membrane, which is मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर क्या है हमारा? ये हमारा सेल है, दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म है। तो वो ये कह रहा है कि इस न्यूक्लियस को इस साइटोप्लाज्म से कौन अलग कर रहा है? अगेन द सेम, दिस कवरिंग। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप कैसा है? अभी हमने पढ़ा डबल मेम्ब्रेनस है, हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज योर पोरस। इसमें पोर्स है, अभी हमने पढ़ा यू हैव योर न्यूक्लियर पोर्स, सो योर डबल एंड पोरस। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। अभी हमने देखा था कि इसके पास क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस करता क्या है, ये न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है, हमारा आरएनए सिंथेसिस। ये आरएनए बनाता है, दैट इज योर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये आरएनए के साथ साथ क्या बना रहा है, हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को पता है आपको सबको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम्स दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। तो हम किस सारे पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कॉमनली रेफर्ड टू एज सेल ड्रिंकिंग। देखो, हर सेल जो है उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं, लाइक हम क्या कर रहे हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं। सेल भी क्या करते हैं, सेल ईटिंग करता है, सेल ड्रिंकिंग करता है। तो उसमें क्या होता है, दैट इज योर एंडोसाइटोसिस, मींस टेकिंग इनसाइड समथिंग। द सेल जब कुछ एनगल्फ कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, वन इज योर फेगोसाइटोसिस, वन इज योर पिनोसाइटोसिस। फेगो क्या होता है, फेगो मींस सेल ईटिंग, तो फेगोसाइटोसिस इज योर सेल ईटिंग। तो जब सेल कुछ खाता है, ठीक है, मींस फूड खा रहा है, कोई बैक्टीरिया आ गया, उसने बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, तो जब सेल अपने अंदर कुछ भी एनगल्फ कर रहा है, कुछ ईट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। लाइकवाइज जब सेल कुछ ड्रिंक कर रहा है, तो सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सेल ड्रिंकिंग किसको रेफर करते हैं, सो अवर आंसर इज योर पिनोसाइटोसिस। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये किसके पार्ट है, हमारे एंडोसाइटोसिस के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों सबको, एवरीवन, इज इट क्लियर? चलो, so coming towards next question, plant cells are distinguishable from the animal cells in containing। देखो, हमें पता है बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, राइबोसोम्स है, यू हैव न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनेल्स हैं बेटा कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो प्लांट सेल के पास है, हमारे पास नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल्स के पास होती है, एनिमल सेल्स के पास नहीं होती। देखो, सेल वॉल क्या है, थिक रिजिड लेयर है। क्या फंक्शन है इसका, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और प्लांट सेल्स को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए प्लांट सेल्स दे हैव सेल वॉल। और अभी हमने क्या पढ़ा था, प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। तो प्लीज ध्यान रखना, प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कॉमन है सब में, सिर्फ क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। नेक्स्ट, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इट वाज स्टेटेड बाय, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे ओलंपियाड्स में, यहाँ तक कि नीट के पेपर में भी पूछा जाता है। देखो, हमें पता है जब सेल की डिस्कवरी हुई थी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी थी, लाइक आपकी सबसे पहले शेल्डन ने क्या कहा था, दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। देन श्वान है, उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। हमारी सेल थ्योरी फॉर्म हो गई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। लेकिन ये जो सेल है, इस सेल से सेल्स अराइज कैसे होते हैं, तब हमारे 1855 में एक साइंटिस्ट थे, हमारे वर्चो, रुडोल्फ वर्चो, ही सेड दैट द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मींस एक सेल से ही और सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इन्होंने एक टर्म, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ये क्वेश्चन आपको 2-3 टाइप्स में अलग करके पूछा जा सकता है कि जैसे ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट जो थी, इसी का मतलब है दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये स्टेटमेंट दी थी हमारी रुडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। चलो, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो,
आपको पता है जब सेल की डिस्कवरी हुई उसके बाद बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई, ठीक है। लाइक जो हमारे 1838 में यू हैव अ बॉटनिस्ट जिन्होंने कहा था, शिल्डन, ही सेड कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। देन अ zoologist came in the year 1839, उन्होंने स्टेटमेंट दी, थियोडोर श्वान, दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो कंबाइंड स्टेटमेंट हमारी सेल थ्योरी में क्या बनी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल से सब ऑर्गेनिजम्स तो बने हैं, लेकिन ये सेल्स अराइज कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तब रुडोल्फ वर्चू आए एंड ही गेव द स्टेटमेंट दैट कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओमनिस सेल्यूला ही सेल्यूला, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और ये क्वेश्चन बेटा नीट में भी आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि ये टर्म ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या है, दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये किसने दी थी, रुडोल्फ वर्चू ने, ठीक है। तो प्लीज आप ये मार्क कर लें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग सेल्स आर डिस्कवर्ड बाय, हमें पता है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर किए थे इन द ईयर 1665 दे वर डेड सेल्स। तो अगर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किए थे तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे, द लिविंग सेल्स दे वर डिस्कवर्ड बाय लुवेनहुक। लुवेनहुक ने, एंटनी वैन लुवेनहुक, ही वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द लिविंग सेल्स। और उन्होंने कहाँ डिस्कवर किए थे, आपके पॉन्ड वाटर में। ही टुक अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर और वहां पे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सबसे पहले लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय योर लुवेनहुक, ठीक है, इन द ईयर 1674। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड कॉन्टिन्यूसली इस तरीके के बेटा आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे फ्रॉम तक्षशिला इंस्टीट्यूट। सो फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू तक्षशिला इंस्टीट्यूट। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक गाइस।